Greetings in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में सबको मेरा प्रणाम। It is my great joy to be here this ये morning. मेरे जीवन का एक सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ। It is really good to see all of your beautiful faces. आज आपके चेहरे को देखना मेरे लिए अच्छी बात है, आपकी सुंदर चेहरे को देखना। The last time we came was for Kefira's dedication, पिछले बार जब हम आए थे तो किफिरा का डेडिकेशन के लिए हम आए थे। and it is so good to see her grown up fully. या और उसे भी बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छी बात लग रहा है। It's been 2 years now. Yeah, she's two. She's two now. Yeah. Amazing, beautiful, and I celebrate what God is doing in this place. और मैं आनंद मनाता हूँ जो परमेश्वर इस जगह पर कर रहा है। I celebrate what God is doing in each and every one of your आप lives. सबके जीवन में जो परमेश्वर कर रहा है उसको लेकर मैं आनंदित हूँ। Whatever God has begun, जो परमेश्वर ने शुरुआत की है, whatever God has birthed, जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में जन्मा है, whatever God has been working in your life, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, it has the power to not die. उसमें वो क्षमता है कि वो मरे नहीं। It has the power to stay alive. Even if you die, the work of God in you will not die. अगर आप भी इस दुनिया से चले जाए तब भी जो परमेश्वर ने शुरुआत आपके अंदर से की है वो आगे चलने में उसमें क्षमता है। That is why God says that my love for you will last 1,000 generations. इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो प्यार मैंने आपके अंदर भरा है वो 1000 पीढ़ियों तक चलती रहेगी। Which means that there is an expiry date for your life. इसका क्या मतलब है? हमारे जीवन का एक एक्सपायरी डेट है, But the work of God in us doesn't have an expiry लेकिन जो date. परमेश्वर का काम जो हमारे अंदर शुरू हुई है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। People may forget your name, आपके नाम शायद लोग भूल सकते हैं, but they can still taste of the goodness of God in your life. लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर ने अच्छाई शुरुआत की है उस अच्छाई की टेस्ट जो है लोग कभी नहीं भूलेंगे। Do you understand what I'm trying to talk to you this morning? आपको क्या समझ आ रही है मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ? That there are things that have the capacity to discourage us. कई बार ऐसी चीजें हैं जो हमें निराशा में डाल सकती है। There are things that has the capacity to deviate us from our destiny. कई बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं जो हमारे जीवन की मंजिल से हमें दूर और अलग कर सकती है। There are things that even have the capacity to throttle us in our physical realms. जो हमारे शारीरिक स्तर पे भी हमें थ्रॉटल, हमें दबाने वाली कई सारी सिचुएशंस आ सकती है। But the work that God does in us and through us, लेकिन जो काम परमेश्वर हमारे जीवन से करवाना चाहता है that work will last for generations to वो come. चीजें जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी टिकेगी। And somebody said an amen to that. क्या आप आमीन कह सकते हैं? Amen. The one thing that I love about Pastor Lijan is that he always picks up my sermons in this spirit, Just this week we had this conference and I was supposed to preach right after him and he preached before me and he picked up half of my sermon. इस आने वाले लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में जो हुआ है तो पास्टर प्रिजी का सेशन के पहले मेरा सेशन था, कुछ एक दो पॉइंट्स जो है वो This morning he came and said God is going to break generational issues and there are generational blessings being released. और आज पवित्र आत्मा में निर्भर होकर मैं कहना चाहता हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप थी परमेश्वर वो तोड़ने वाली है और वो आशीष में बदलने वाली है। And that's my entire sermon. I was supposed to build towards that. ओके, वही चीजें के ऊपर मैं आज विचार करने वाला था। And I just want to tell you that God will not fail you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी आपको फेल नहीं करवाएगा। Can I read this verse for you? This is Judges chapter 6. जजेस का पुस्तक उसका 6वां अध्याय Verse 24, 25 and 26. 24, 25 और 26वां वाक्य। I'll read it in English. Yeah. Can somebody also read it in Hindi? We'll have it in Hindi, yeah. Okay, I'll read it first in English. It says in verse 24, and Gideon, he built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the land of the clan of Abiezer to this day. That night, the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old. Pull down your father's altar to Baal
and cut down the Asherah pole standing beside it. Then build an altar to the Lord your God here on the hilltop sanctuary, laying the stones carefully. Sacrifice the bull as a burnt offering on the altar, using as fuel the wood of the Asherah pole that you cut down. 24, 25 and 26, please. तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अब एजरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उसी दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। And everybody said an amen. Amen. क्या आप आमीन कह सकते हैं? How many of you know the story of Gideon? कितने लोग इस गिदियोन की इस कहानी को जानते हैं? It's a very beautiful story. एक बहुत ही सुंदर कहानी है ये। This man was an ordinary person. ये एक साधारण सा व्यक्ति था He was traumatized by his own life. और वो अपने जीवन को लेकर कई सारी पीड़ा में था। He had his own ups and downs. उसके जीवन में कई ऊंच नीच थी, But all through his life, the enemy had attacked him and his family and his city and his nation. और उसके जीवन काल में उस शैतान ने या दुश्मनों ने उसके परिवार, उसके राज्य को हमेशा सताया करता था। But the Lord brought him to a place of encounter with him. लेकिन एक दफा परमेश्वर ने गिदियोन को परमेश्वर के एक मुठभेद में लेके आया। There came a point in Gideon's life when God met him face to face and revealed to Gideon who God was. एक दफा उसके जीवन में ऐसी घटना घटी कि परमेश्वर स्वयं उसके सामने आकर कहा कि वो कौन है। There came a point in Gideon's life when he had a revelation not just of who God is, but now he had a revelation of who he was. उस वक्त उसके जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसे पता चला कि परमेश्वर कौन है, वही नहीं कि वो परमेश्वर में कौन है। See, it's not enough that we understand who God is. केवल ये काफी नहीं कि हम समझे कि परमेश्वर कौन है, It is also necessary that we understand who we are. हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर में कौन है। See, the Bible says, as soon as God met with him, God said, "You are a man of great valor. You are a mighty hero. You are a powerful man." और जिस वक्त परमेश्वर ने गिदियोन से, वो भयभीत गिदियोन को जब देखा, परमेश्वर कहता है कि तू एक बड़ा योद्धा है। When God met Gideon, God didn't say, "I am big and I am good and I am powerful." परमेश्वर जब गिदियोन जो एकदम डरा हुआ था, उसको देखकर ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं परमेश्वर हूं। Which God is. God is great. God is all powerful. God is all knowing. उसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर बड़ा है, महान है, वो सर्वशक्ति है। And yet, when Gideon met with God, Gideon had a revelation of who Gideon was. और उसी वक्त जब गिदियोन उस महापरमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो गिदियोन को पता चला कि वो परमेश्वर में कौन है। You know, the difference between believers and unbelievers is this. ये विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर है? Is that the unbelievers also know that God is great. क्योंकि ये अविश्वासी भी जानते हैं कि परमेश्वर महान है। See, they don't know the name and the theology and all these things, but they know that if there is a God, God has to be all powerful, God has to be almighty, God has to be holy. वे शायद यीशु मसीह नाम नहीं जानते रहेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर है। But the difference between a believer and the real difference between a believer and an unbeliever is that now a believer knows who he is when he has a relationship with his God. एक अविश्वासी और एक विश्वासी में क्या अंतर है कि ये विश्वासी जो है वो समझता है कि परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर में कौन है। He understands his true ability and capacity in God. एक विश्वासी जो है परमेश्वर में उसके वास्तविक सामर्थ को जानता है। And I pray that each time that you come into the church, come into the house of God, you will go back with a revelation of how
potential you are. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ कि हर बार जब आप इस कलीसिया में आते हैं और इस कलीसिया से जब जाते हैं तो परमेश्वर में आपकी क्या क्षमता है ये जानकर और ये पाकर आप जाएंगे. I pray that your eyes will be open to see the spiritual riches that is deposited on the inside of you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मिक आंखें इस तरह खुलेगी कि परमेश्वर की तिजोरी जो आप में छिपी है उसको आप परखोगे. When Paul was praying for the church at Ephesus, Paul didn't say that God will fill them with inner strength. परमेश्वर जब एफेसोस के कलीसिया से Paul, when he was praying for the church at Ephesus, पॉल जब एफेसोस के कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है he doesn't say, God, please give them inner strength. वो नहीं कहता है कि परमेश्वर तू उन्हें अंदरूनी ताकत दे. He says, God, open their eyes to see the inner strength that they already have. वो ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू उनकी आंखों को खोल ताकि उनके अंदर की सामर्थ को वो परखे. So the one thing that stops us from using the ability that God has given us is that our eyes are closed. एक चीज जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दी हुई सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए रोकती है क्या है? हमारी आंखें, हमारी दृष्टि. So when we come here to worship God, our eyes need to be opened to see not just God, but to see ourselves. तो जब हम यहाँ पर आराधना करने इकट्ठा होते हैं तो ना केवल हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें परंतु परमेश्वर ने जो सामर्थ हमारे अंदर छिपाई है उस चीज पर भी हमारा ध्यान हो. As long as you will continue to agree with what the world says about you, you will remain defeated. ओ, जब तक आप जो दुनिया आपसे कहती है कि आप ये हैं, आप ऐसे हैं, उस विषय पर आप विश्वास करके बैठेंगे तब सारे समय आप हारे हुए ही रहेंगे. But the moment you begin to believe what God really thinks about you, what He really says about you, उस वक्त से जब आप परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है उस पर विश्वास कर कर उस पर जब आप अमन करते हैं तो आप जीत की ओर बढ़ते हैं. then there is nothing in the entire world that can defeat a child of God. वो व्यक्ति जो अपने अंदर की परमेश्वर की दी हुई क्षमता को समझता है दुनिया उसको कभी भी हरा नहीं सकती. John says this in 1 John chapter 5 verse 4 that there is something that is born of God that does overcome the world. पहले यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय उसके 4वें वाक्य में कहता है कि कुछ तो तुम्हारे अंदर जन्मा है जो दुनिया को जीत सकती है. And he says this is what has overcome the world. It is our faith. और वो कहता है कि क्या है वो चीज जो दुनिया को हरा सकती है? हमारा विश्वास. When we trust what God has spoken over our lives, जब हम परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उस पर जब हम विश्वास करते हैं that will give us victory. वो हमें जीत ले आती है. And now this morning I want you to remember that we already have the victory. आज इस सवेरे समय मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ध्यान में ये बात हो कि जीत ऑलरेडी हमारी है. That we already have the blessing. कि हमारे अंदर परमेश्वर ने वो आशीष को दी है. We already have the grace. वो आशीष जो अनुग्रह परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर दी है. We are already anointed. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर ऑलरेडी परमेश्वर ने समा रखा है. We already have the peace of God. परमेश्वर की शांति हमारे अंदर ऑलरेडी है. We already have all the physical material blessings that we need to live this life. इस दुनिया में जीने के लिए सारे आशीष परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी रखा है. See, when the disciples came to Jesus and said, we don't have food, Jesus looked at them and said, you feed them. जब चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि इन भीड़ को खिलाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? तुम उन्हें खिलाओ. Their suggestion was, we'll go to the nearby market and we'll try and look for the cheapest food. चेलों ने कहा कि हम इस नजदीक के मार्केट में जाएंगे और सबसे सस्ती खाना जो है लेके आकर इस भीड़ को खिलाएंगे. But Jesus looked at them and said, what do you have? Show me the little that you have, and the little that you have is enough. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है भले ही वो सबसे कम भी क्यों ना हो वो चीज क्या तुम परमेश्वर के हाथ में दे सकते हो? Because what the little that you have in God's hands is more than enough than all the plenty that the world can give you. जो हल्की सी चीज जो आपके जीवन में है जो आप परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं वो इस दुनिया के सारे आशीषों से बढ़कर है. The Bible says that Gideon was a man like this.
बाइबल कहता है कि गिदियन भी इसी तरह का एक व्यक्ति था that he was living in utter fear. कि वो डर में और भय में रहता था. The Bible also says how all his brothers were murdered. और बाइबल कहती है कि कैसे उसके भाई का खून हो चुका था. Not just one brother, lot of brothers, all of them were killed. कई सारे भाई थे और सबकी हत्या हो चुकी थी. All of them were more mighty and stronger than him, but Gideon was the least of all of them. और उन भाई लोग जो है वो तंदुरुस्त और बड़े ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति थे. उनकी मौत हुई थी और उनके कंपैरिजन में गिदियोन जो है बहुत ही भीखा था. And here is Gideon, one of the last in his family. और यहाँ पर हम जब पढ़ा वो गिदियोन है जो उसके परिवार का सबसे आखिरी है. And then God comes to him and says, और परमेश्वर उस सबसे आखिरी व्यक्ति को आकर कहता है, mighty hero, हे माइटी हीरो, सामर्थ्यशाली हीरो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. Mighty hero, हे माइटी हीरो, you are going to experience victory. तुम जीत को हासिल कर पाओगे. Mighty hero, हे माइटी हीरो, I'm giving you an assignment over this city. मैं इस शहर के ऊपर एक जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ. See, Gideon, he is not even able to manage his family. गिदियोन जो है अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा. And that's the Gideon that God is speaking to, and he's saying, okay, now Kargar is given to you. Hallelujah. I receive it. Yeah, that is the Gideon that God is speaking to, and he's saying, now go exercise your authority and dominion in the nation. वही गिदियोन है जो परमेश्वर कहता है कि ये सामर्थ जो तेरे अंदर है शहरों को, राज्य को तू हरा पाएगा. Now Gideon was very confused, और गिदियोन ये सुनकर कंफ्यूज हुआ. because Gideon is like, are you serious you got the address correct? गिदियोन पूछता है, परमेश्वर क्या तेरा तुझे जो है सही एड्रेस मिला है क्या? मेरे पास ही क्यों आया है तू? I'm not the best worship leader. मैं सबसे अच्छा वर्शिप लीडर नहीं है. I'm not the best guitarist. मैं गिटार ही नहीं बजाता. I don't know any languages properly. एक भाषा ऐसी नहीं है जो मैं करेक्ट ग्रामेटिकली बात कर सकता हूँ. And Gideon says, और गिदियोन कहता है, are you really sure I'm the one? क्या Are you really sure कि आप सच में मुझे ढूंढ के आए हो क्या? But God keeps reassuring him, yes, Gideon, you are the one. I am with you. You will come back with a victory. हर हफ्ता परमेश्वर उससे कहता है कि हाँ गिदियोन, मैं सही जगह पर आया हूँ, जीत तुझे होगा. See, sometimes when God is repeating sermons in church, that's God's love for you, and He's reassuring your faith. और कई बार जब कलीसिया में बार-बार वही प्रचार प्रीच होते हैं जो हमारे कलीसिया में होता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो कह रहा है, इस संदेश से मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. I'm reassuring your belief system. मैं तुम्हें जो है तुम्हारे विश्वास गलत नहीं है, ये तुम्हें बार-बार बता रहा हूँ. God has not forgotten the previous revelation. परमेश्वर जो है कुछ नया देने के लिए है नहीं, ऐसा नहीं है. It is because God wants to reassure what He has already spoken to you. परमेश्वर बार-बार वही संदेश इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कहना चाहता है कि ये संदेश से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. And when the word of God came to Gideon, और जब परमेश्वर का शब्द गिदियोन के पास आया, this is what Gideon did. गिदियोन ने ये किया. He said, I need to bring an offering to God. वो कहता है कि मैं एक भेंट जो है परमेश्वर के लिए ले आना चाहूंगा. I need to bring worship unto this Jesus. इस जीसस, इस यीशु मसीह जो मेरे सामने प्रकट हुआ है, उसके लिए मैं दंडवत करना चाहता हूँ. And the Bible और says परमेश्वर का शास्त्र कहता है, that God accepted that offering. परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करता है. And as soon as God accepts that offering, और जैसे ही परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार किया, He brings a second offering. वो दूसरा भेंट को ले आता है. Now this time it's not just an offering. और इस वक्त वो केवल एक नाम के लिए भेंट नहीं है. This time it is an altar. इस बार वो संधि है. See, the difference between an offering and an altar is this. ऑल्टर में वेदी और भेंट का क्या अंतर है? Is that the offering, it gets over once the service is done. ऑफरिंग जो आप करते हैं वो
जैसे ही सभा खत्म होती है, ऑफरिंग खत्म होता है। But an altar is something that lasts for generations to come. लेकिन वेदी जो आप बनाते हैं वो केवल आप संडे तक सीमित नहीं, आपके परिवार तक सीमित नहीं, आपके जनरेशन तक सीमित नहीं, वो सालों साल आपके लिए बात करती है। In verse 24 it says that Gideon, he built an altar to the Lord there, and he named the altar Yahweh Shalom, and that altar it remains in that place even to this day. और वहां पर लिखा है कि वहां पर गिदयोन ने एक वेदी बनाया और याहवे शालोम उसका नाम दिया, और वहां पर लिखा है कि वो आज तक वहां पर वो वेदी है। Do you understand what I'm trying to talk to you this क्या morning? आपको समझ आ रही है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? When God spoke to him, he said, I am now going to respond back to God. और वो कहता है कि जब परमेश्वर गिदयोन से बात करना चालू किया तो गिदयोन कहता है कि मैं परमेश्वर से वापस बात करना चाहता हूं, Now I am going to give back to him. और मैं जो है फिर से कुछ और परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं। See, in fact, if you ask me, Gideon did not receive his prayers answered till now. जब तक वो 2 बार वेदी बनाया, अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने गिदयोन ने अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया। Gideon's victory came in chapter 7. उस 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने गिदयोन को जीत दिया। Do you know Gideon's 300 went and fought the enemy? आप जानते हैं ना, गिदयोन के 300 सैनिक थे जो हजारों तादाद में सैनिकों से लड़कर जीत हासिल की थी। But that happened in chapter 7. वो 7वें अध्याय में हुई थी। But here is Gideon, और यहां पर हम देखते हैं गिदयोन के बारे में, where he's saying, I am going to still bring worship to God. वो कहता है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, मैं परमेश्वर का दंडवत करूंगा, उसके लिए मैं एक वेदी बनाऊंगा। And in faith, और विश्वास में he declares a name to this altar. और वो एक नाम की घोषणा वहां पर करता है। And he says, this altar will be called Yahweh Shalom. वो कहता है कि ये वेदी का नाम क्या होगा? याहवे शालोम। And this Shalom means peace. और शालोम का क्या अर्थ है? पीस, शांति। And this is the most peaceless time in history of Israel. और आप अगर बाइबल देखेंगे तो समझ में आएगा कि गिदयोन की जो समय है वो वैसे समय था कि इज़राइल में शांति का नामो निशान नहीं था। And that is the time when Gideon is building an altar there. और वो जब शांति का नामो निशान नहीं था तब वहां पर एक वेदी बन रहा है। And see, not an offering. वो एक केवल एक भेंट नहीं, An offering will finish by the end of the day. ऑफरिंग जो है, भेंट जो है, वो दिन के अंत होते ही ऑफरिंग खत्म। But this is an altar that will last for generations to come. लेकिन ये वेदी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाली है। People can look back at Gideon and either laugh about his faith, लोग उस समय के लोग गिदयोन को देखकर शायद हंस देंगे उसके और- विश्वास को देखकर, or they will praise God for his faith. और शायद वो परमेश्वर को स्तुति करेंगे इस गिदयोन की विश्वास को देखकर। That is how outrageous his faith was. इतना भयंकर था गिदयोन का विश्वास। And he said, I'm going to name this altar that the Lord is peace. और वो कहता है कि इस वेदी का नाम क्या रखूंगा? समाधान का परमेश्वर। And this morning, I pray that some of us will reach that place. और मैं आज इस सवेरे का समय ये प्रार्थना करता हूँ कि हम में से कुछ लोग उस तक पहुंच पाएंगे Where we make a commitment to God that is going to last for कि generations to हम come. परमेश्वर से कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो केवल हमारी पीढ़ी तक सीमित नहीं परंतु आने वाली पीढ़ियों में भी उसका चर्चा होगा। That we will surrender our life to God in such a way that there is no turning back. कि हम हमारे जीवन को इस तरह परमेश्वर के सामने अधीन रखेंगे कि हम वहां से वापस लौट के नहीं जाएंगे। That if I get out of here and people look at me and call me a bevkoof, it's still okay. I'll still believe what God has said about हम उस me. परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता के बाद अगर लोग हमें बेवकूफ भी कहेंगे तब भी हमें कोई परवाह नहीं। Gideon, where is the peace? गिदयोन जब इस वेदी का नाम शांति रखा तो लोग पूछेंगे, हे गिदयोन, शांति कहाँ है? Where is the peace that you have been declaring and praying and you've actually built a permanent altar? तुम जिस समाधान की चर्चा कर रहे हो, जिस आशीष की चर्चा कर रहे हो, जिसके लिए तुमने वेदी बनाया है,
कहाँ है वो समाधान? Where is the healing? कहाँ है वो चंगाई जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे Where हो? is that prosperity? कहाँ है वो आशीर्वाद जो तुम जिसके लिए चाहते हो? Where is the healing in your relationships? कहाँ पर है वो समाधान आपके पारिवारिक जीवन में? Where is the strength in your marriage? कहाँ पर आपकी मैरिज में इतनी सारी प्रॉब्लम है? Where is it? कहाँ है? But Gideon was willing to look foolish in the eyes of people so that he can worship God. गिदियोन जो है लोगों के सामने बेवकूफ बनना उसके लिए चलता था, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने एक समाधान का वेदी बनाया। And this morning I pray that God would inspire our hearts, push us to that place where we will build an altar to God. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमसे ऐसे बात करेगा ताकि हम उस परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आज जानबूझकर एक वेदी बनाएगा। See, we cannot build an altar to God bigger than an altar that He has already built towards us. हम परमेश्वर के लिए ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता जो पहले से उसने हमारे लिए किया है। See, when Jesus died on the cross, that was an altar. जब परमेश्वर यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया, उस गोलगोथा के क्रूस पे मारा गया, तो वो हमारे लिए एक वेदी था। It was not a temporary offering. वो एक टेम्पररी ऑफरिंग भेंट नहीं था हमारे लिए। It was an altar that will last for generations. It will last for all eternity for us. वो वेदी जो है वो केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक असीमित है वो। That is the altar that will keep telling God that we are pure, we are holy, we are blessed, we are not sinners. वही वेदी जो है वो हमारे लिए परमेश्वर खुदा से ये हमेशा बात करता रहेगा कि हम जो है पापी नहीं है, हम परमेश्वर में पवित्र है। See, Gideon's altar had a voice. गिदियोन का जो वेदी था उसको शब्द था, And this is what the voice said, और ये शब्द था that the Lord is peace. कि परमेश्वर शांति है। The altar of Jesus has a voice. यीशु मसीह जो वेदी है वो भी उसका भी एक आवाज है। When Jesus died on the cross, that altar, it had a voice. और जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान को दी तो तब भी एक आवाज गूंज रही थी। In fact, the Bible says that voice is stronger than the voice of Abel crying out from the blood. बाइबल इस तरह From the कहती ground. है कि जो वेदी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर दी, वो वेदी काइन की वेदी या काइन का Abel. आवाज Abel's. एबल का आवाज से भी ज्यादा है। That this is an altar that speaks over our lives every day. और यही वेदी है जो हमारे लिए हमेशा खुदा से बात करता है। Every morning when we wake up, हर सवेरे जब हम उठते हैं, this altar brings new mercies for ये us. परमेश्वर जो क्रूस पर हमारे लिए वेदी बनाया वो हमारे लिए नए आशीष को प्रदान करती है। Every morning the everlasting love of God is poured into our lives. हर सवेरे जब हम उठते हैं तो परमेश्वर की वो असीमित प्यार हमारे अंदर बहती है। Every morning there is fresh forgiveness deposited into your life. हर सवेरे जब हम उठते हैं परमेश्वर की वो असीमित माफी हमारे अंदर कूट कूट के भरती है। Every morning there is new abilities and strengths that is given to you. हर उस सवेरे जब हम उठते हैं उस वेदी द्वारा एक नया सामर्थ हर दिन हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। See, you should understand the cross of Jesus is not only for your salvation. आपको ये समझना है कि यीशु मसीह का जो क्रॉस है, वो जो मृत्यु है, वो केवल हमारे पाप की क्षमता के लिए नहीं था। It is not only so you can go to heaven. ये सिर्फ उसी के लिए नहीं कि आप स्वर्ग जाए, It is also for you to live out each day of your life here on the earth. ताकि आप उसके सामर्थ्य से इस धरती में भी आपके हर जीवन आशीषमय हो। Every day when you live with the cross before you, हर दिन जब उस क्रूस के को सामने रखकर उस परमेश्वर की उस मृत्यु का समझ रखकर जब आप जीते हैं, then you will live a victorious life. तो आप एक जीत का जीवन जी पाएंगे। Because now you're seeing the altar of Jesus. क्योंकि आप आज आपके सामने उस परमेश्वर ने उस क्रूस पर बनाए गए वेदी को देख रहे हैं। Now you're responding to that altar. और आप जो है उस वेदी के सामने एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। Now you have to build your own altar. और उस रिस्पॉन्स में आपको एक वेदी बनाना है। Now some of you, the Lord is going to bring you to a place where you make an altar to the Lord with regards to your marriage.
कई लोग जो है आपके शादी को लेकर परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाएंगे। Some of you, you will make an altar to the Lord concerning your children. आप आज कुछ लोग जो है आपके बच्चों के प्रति परमेश्वर के सामने एक वेदी बनाएंगे। Some of you will build an altar to the Lord concerning your personal journey with God. कुछ लोग जो है आप अपने आत्मिक जीवन को लेकर परमेश्वर के सामने एक वेदी को बनाएंगे। Some of you may want to build an altar to the Lord concerning your calling for ministry. कुछ लोग जो है आपके ऊपर परमेश्वर की जो बुलावट है सेवकाई के लिए उसके प्रति एक वेदी को बनाएंगे। Some of you may want to build an altar to the Lord for this house of worship here in Kargar. कुछ लोग जो है शायद इस भवन को लेकर एक वेदी बनाना चाहेंगे। But whatever you build an altar to the Lord, you need to give it a name. जो भी आप वेदी बनाते हैं उस वेदी का एक नाम होना जरूरी है। It is necessary that you by faith declare something about your own life. ये बहुत ही जरूरी है कि विश्वास में आप घोषणा करें जो वेदी आपके जीवन में कार्य करे, एक नाम। And the Bible says when Gideon did this, और बाइबल कहती है कि जब गिदयोन ने ऐसा किया, when Gideon built an altar to the Lord, और जब गिदयोन ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया, see, the first altar that Gideon built to the Lord, God did not ask for it. पहला वेदी जो परमेश्वर के लिए गिदयोन ने बनाया, परमेश्वर ने कभी पूछा नहीं उसे। It was Gideon's voluntary decision to give this first altar to God. ये गिदयोन का अपने आप में एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मेरी बातें? God did not expect Gideon to do this. परमेश्वर ने ये चाहा नहीं कि गिदयोन एक वेदी उसके लिए बनाए। It was Gideon's act of faith in building the first altar to God. वो गिदयोन की विश्वास का एक कदम था कि वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए। But the second altar, लेकिन दूसरी जो वेदी है, it was required by God. वो परमेश्वर ने उससे कहा। The Bible says, बाइबल कहती है, then God told Gideon, और जब गिदयोन से परमेश्वर ने कहा, take the second bull. दूसरे बैल को लो। The first bull was already offered. पहला जो था वो ऑलरेडी वेदी में अर्पण कर चुका था। But now God comes back to him. और परमेश्वर फिर से गिदयोन के पास आता है। And now God is speaking to Gideon. और गिदयोन से परमेश्वर ये कहता है, God is saying, because you brought me this altar called Yahweh Shalom, क्योंकि तुमने एक याहवे शालोम नामक एक वेदी को तूने पहले ही अर्पण किया है, now I'm going to ask you to bring a second altar. मैं दूसरी एक वेदी तुमसे चाहता हूँ। And the Bible says God told him, bring the second bull. और परमेश्वर का शास्त्र कहता है परमेश्वर ने गिदयोन से कहा कि दूसरे वेदी को तुम बनाओ। And then God told him, और परमेश्वर ने कहा, now go to your father's house. और तुम जाकर अपने पिता के भवन में, There is another altar there. वहां पर और एक वेदी पहले से बना हुआ है, And there is another idol there. और वहां पर एक बिंब है, एक आइडल है, एक मूर्ति है। Now I want you to take that altar down. I want you to take down that idol and I want you to bring this altar in its place. Replace that altar with this altar. और मैं चाहता हूं कि जो दूसरी वेदी जो तुमने अभी बनाने की निर्णय या मैंने बनाने की आवश्यकता बताई, तुम उस पिता के घर में जाओ और वहां पर एक गलत वेदी है, एक मूर्ति है, उसे तुम गिराओ और इस वेदी को उस जगह पर रखो, रिप्लेस करो, अदला बदली करो। So what am I trying to say here? मैं क्या कहना चाहता हूं? If you read the whole chapter, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, you will see that the reason for Israel's demise इज़राइल के जो वंश का नाश क्यों हुआ था, was because of that altar. क्योंकि वो गलत वेदी उस घर में पहले से था। And when Gideon was in this conversation with God, और जब गिदयोन परमेश्वर से बातें कर रहा था, Gideon was asking, what happened to all the promises that God gave us? गिदयोन पूछ रहा था कि इतने सारे परमेश्वर के वायदे थे, उस सब का क्या हुआ? Now God is beginning to answer those और questions. परमेश्वर अब उस सवालों का जवाब देने के लिए लगा। Now God is saying, you want to know how you will bring peace in your land? परमेश्वर गिदयोन से कहता है, तुझे जानना है तू कैसे अपने घर में, अपने राज्य में शांति को लेके आएगा? You need to uproot the altars of Baal.
तुझे वो सारे देवताओं के वेदी को हटाना पड़ेगा जो पहले से तेरे घर में जगह बनाए रखा है। Now, see, God didn't do that first. परमेश्वर ने पहले ही उससे नहीं करवाया वो सब What चीजें। did God do first? पहले क्या चीज परमेश्वर ने करवाया? God came and said, Kevin, you're a mighty hero. कहा कि हे केविन, तू एक बलवंतशाली महान व्यक्ति है, I am with you, Kevin. मैं तेरे साथ हूँ केविन। You are going to fight the enemy like one man fights thousands of people. तू उस तरह तेरे दुश्मनों से लड़ेगा कि तू अकेला और तेरे दुश्मन हजार, फिर भी तेरे में जीत पाएगा। You go in the strength that you already have, Kevin. God is assuring you victory, Kevin. और परमेश्वर कहते हैं केविन, तू डर मत, जीत तेरा ही है, तू इस बल तेरे अंदर है, उस बल से तू आगे बढ़। But you know what happens with many of us? तो आप जानते हैं कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, We listen to those first 3 prophecies and then we run out for battle. और ये तीनों चीज जो परमेश्वर, जो पहले दूसरे तीसरे संडे जो परमेश्वर ने हमसे कहा, वो सुनकर हम दौड़ लगाते हैं शैतानों को हराने। And guess what? और क्या होता है, We'll come back with victory. हम जीत के साथ जरूर आते हैं, But the thing is, the root of the issue has not been dealt with. लेकिन हकीकत क्या है, वो जड़ जो है जिसकी वजह से हमारे परिवार में अशांति फैली थी, मौत टिका हुआ था, वो जड़ वही के वही है। And that is where Gideon was a man of spiritual intelligence. वहां पर हम गिदेन की एक असीमित खूबी देखते हैं कि वो आत्मिक तौर पे समझदार था। He was not just looking for prophecies. वो सिर्फ परमेश्वर के शब्दों को या वाणी को सुनने के लिए सिर्फ एक्साइटेड नहीं था, He was willing to stay put till he gets to the root of the issue. वो उसके परिवार को पीड़ा देने वाली उस सिचुएशन के जड़ तक जाकर हल चाहता था। And that is why the Bible says he kept building altars to God. इसलिए हम देखते हैं कि गिदेon जो है बार बार लगातार परमेश्वर के लिए वेदी बनाता रहा। See, first he brought an offering to God, and if I'm his pastor, I would say, wow, what an excellent believer. और अगर मैं गिदेon का पास्टर होता तो मैं कहता क्या उम्दा विश्वासी है। But he didn't stop there. लेकिन वहां पर वो रोका नहीं, He continued to build an altar now. वो वेदी बनाता रहा, वेदी बनाता रहा। And the second time, God now came and said, now this is the altar I need you to build. और दूसरे बार परमेश्वर कहता है कि अब मैं चाहता हूं कि तू इस तरह का वेदी बनाए। Now, you know what is the crazy thing about this story? क्या आपको पता है एक अलौकिक बात इस कहानी के बारे में? The altar of the enemy was in his father's house. दुश्मन जो पीढ़ा लेके आ रहा था उसके परिवार के खिलाफ, उन What दुश्मन was का happening against the entire nation was situated in his father's house. जो पूरे शहर पूरे राज्य के खिलाफ जो शैतान उसके खिलाफ जो लड़ रहा था, उसकी वेदी ये गिदेon के घर के अंदर था, In his father's house. अपने गिदेon के पिता के घर में। And the Bible says it took great courage for Gideon to go and break that altar. और उसके लिए एक असीमित करेज, सामर्थ आपको लगेगा कि उस सारी चीजों को आपके घर से बाहर निकाले। Because my father's started this business, you know. क्योंकि ये मैं नहीं, मेरे पिता के पिता के पिता के आयु से हम यही करते आ रहे हैं। This is our family tradition. ये हमारे परिवार के ट्रेडिशन है कि हम यही करेंगे। This is how we do marriages in our house. इसी तरह हम शादी करवाते हैं, This is how we run finances here. इसी तरह हम फिनेंस को या पैसे खर्चा करते हैं, This is how we worship. इस तरह हम आराधना करते हैं। We will not change. हम बदलेंगे नहीं। But this morning the Lord is asking some of you to break your father's altars. रबो शेखे रेयांथरा, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे अगुवाई कर रहा है कि आपको आपके पिता का जो ऑल्टर वेदी जिस तरह बनाया है उसे तोड़ने की The same जरूरत God है। that said honor your father and mother said go and break down your father's altars. उसी परमेश्वर जिसने कहा माता पिता का आदर करो, वो कहता है कि उन्होंने बनाई हुई गलत वेदी को आज तोड़ना है।
Why? Only when you break those altars will you be able to build your own altars to replace them. क्यों? क्योंकि अगर आप उस वेदी जो आपके खिलाफ काम कर रही है, जब उसे तोड़ेंगे तब परमेश्वर का वेदी आपके लिए काम करेगा. Only then you will be able to replace those previous altars. अगर जब आप तोड़ोगे तब परमेश्वर का उस वेदी का अदला बदली होगा. I don't know who you are looking at, but I am looking at a group of Gideons in this house this morning. हालेलुया. मैं नहीं देख रहा कि आप क्या देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, एक गिदियोन का एक बड़ा झुंड को मैं देख रहा हूं. आमेन. A group that is willing to get out of here and go and smash some altars. वो झुंड जो कुछ चीजों को जो पूर्वजों से जो अकड़ के रखा है कुछ परिवारों में, उसको जाकर तोड़ने की क्षमता रखने वाले कुछ गिदियोनों को मैं आज देख रहा हूं. See, you know, sometimes we quote this to non-Christians कि कई बार हम अविश्वासियों को लेकर ये हम कहते हैं that you have to throw away your idols and all of that. हम कहते हैं कि तुम्हें ये सारे जो मूर्ति पूजा के वस्तु है उसको तुम बाहर फेंकना है. हम ये अविश्वासी से कहते हैं. And the thing is, so many of us Christians, we have our own idols in our own way. लेकिन ताजुब की बात यह है कि मसीह होने के बावजूद कई बार हमारे घर में, हमारे हृदयों में उससे भी बड़े बड़े मूर्तियां रखी है. It may be in our thought life, हमारी शायद सोच हो सकती है, it may be in our relationships, शायद हमारे रिश्ते में वो आइडल्स हो सकते हैं, वो it मूर्ति may हो be in सकती our है. wallets. हमारे बटुए में, Yeah, it may be in places that nobody else has access to. कई बार वहां पर उसे छुपाए रखा है जहां पर लोगों को आसानी से आना जाना ना हो. See, God will not point that out to you the very first time you come. जब आप पहले बार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये सब डिटेल बातें परमेश्वर शायद आपसे नहीं कर रही है. But if you stay persistent enough to keep coming and coming and coming and coming, लेकिन अगर आप बार बार उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने की एक भूख रखते हैं, then one day God will catch you. एक दिन परमेश्वर वो सारी मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंकेगा. And one day God will confront you for those things. परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा और कहेगा कि ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में जरूरी नहीं है. And when we are willing to go that extra mile, और जब हम वो एक्स्ट्रा माइल चलने की, परमेश्वर के साथ चलने की एक अभिरुचि रखते हैं, you know, the crazy thing is this. ये सबसे उतड़ पुतड़ वाली बात है. His fear ये गिदियोन का जो डर था, was, what will my father say when he sees this? मेरा डैडी क्या कहेगा जब ये देखेगा. You know, the Bible says the next morning when the entire city woke up and they saw this, they want to go and kill Gideon. और जब गिदियोन ने परमेश्वर के निर्देश का पालन कर जब उसने अपने पिता के घर से सारे बिंबों को तोड़ गिराया, दूसरे दिन सवेरे वो शहर उठा और उन सारे शहर के वासी गिदियोन को मारना चाहते थे. Because this idol was what was keeping the entire city in bondage. क्योंकि यही वो मूर्ति थी जो पूरे शहर को बंदी बना के रखा था. And now everybody wanted to kill Gideon because Gideon destroyed what they worshipped. और अब उस तट पर आ गया गिदियोन की सबकी एंगर, सबकी दुश्मनी मोल ली और सब मारना चाहते हैं, क्योंकि वही वस्तु जिस पर पूरा शहर आराधना करता था वो गिदियोन ने तोड़ दिया. See, when people begin to fight you, remember that you just touched something that they worship. Yeah. जब लोग आपके विरुद्ध होते हैं तो हर बार यही होता है कि आपने शायद उस चीज को छुआ जिसकी वे आराधना करते थे. Look at it in any relationship. It could be in marriage. It could be in, in family. Any relationship. The reason people fight you is because you touched something that they worshipped. कई बार आपके विरुद्ध लोग इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जाने अनजाने में उस चीज को छुआ, उस चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जो वे आराधना करते थे. You know, my wife, the one primary reason why my wife and I, when we fight, it's because she points fingers at the ministry. और
don't know. You can translate. Hallelujah. The reason जब हाँ हम फाइट करते हैं या परमेश्वर के दास अपनी बीवी से फाइट करते हैं या मैं अपनी बीवी से फाइट करता हूँ सेम डैड तो मेन रीजन तब होता है जब हमारे फाइट में हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ वो कुछ कहते हैं And all of a sudden I realized, wait, my ministry has become my idol. और अभी मुझे पता चला कि मेरी मिनिस्ट्री मेरी मूर्ति बन गई है Now if anybody is touching my idol, I have a problem with that. ओ इसलिए अगर कोई भी मेरे मिनिस्ट्री के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मुझे गुस्सा क्यों आता है क्योंकि मिनिस्ट्री मेरे लिए मूर्ति बन गई है ओ कम ऑन Am I talking to anybody in this place yes today? yes That there are things that if you touch those things that others worship, those others they will come to crucify you. ये हकीकत है कि जो लोग जिसकी पूजा करते हैं अगर आपने उसे छुआ तो वो आपके खिलाफ जरूर आएंगे So don't expect this to be a very easy process. तो ये ना समझे कि ये एकदम आसान सा है कि मसीह जीवन The second altar is harder than the first altar. जो दूसरी वेदी जो बनाते हैं मतलब अगले संडे को जब आप आएंगे वो और कठिन होगा Don't think that, okay, now that I am a member here, next Sunday is going to be so beautiful, so easy, so normal. No, it's only going to become harder. हालेलुया More people are going to fight you. आमेन More problems are going to come. हालेलुया But the Lord is still peace. बट शायद लोग ज्यादा बढ़ेंगे आपके खिलाफ शायद अशांति के माहौल पे आप जाएंगे लेकिन आपको क्या समझना है आपने क्या वेदी बनाया है यहोवा शालोम यहवे शालोम परमेश्वर तभी आपका शांति है I'll tell you the word God gave me in my spirit. Before I got this, I'll tell you what God gave me in my spirit. परमेश्वर ने मेरी आत्मा में एक शब्द जो दिया है वो मैं अभी बताना चाहता हूँ इस शब्द से पहले Same thing that Pastor Legend said. जो अभी हम सेशन से पहले जो शब्द सुना था There are altars that have been passed down from generations to generations. कई बार ऐसे वेदी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा परदादा से आपके परिवार में प्रवेश हुआ है There is an anointing on this house to break those altars. एक अभिषेक है इस भवन में जो ऐसी वेदियों को तोड़ने की क्षमता रखता है Not just to break those altars, but now to replace those altars with केवल altars unto तोड़ने God. के लिए नहीं परंतु उसके जगह पर परमेश्वर की वेदी को बनाने के लिए To एक सामर्थ्य replace भवन में those है। altars. उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की वेदी को रिप्लेस करने की एक अभिषेक To है replace those altars. उस वेदी को बदलने की एक अभिषेक These are the altars that will lead you into victory. और यही है वो वेदी जो आपको जीत के तरफ मोड़ा लेके जाएगा Now this time your victory is going to be permanent, और Gideon. इस बार आप अंडरलाइन कर लो कि आपकी जीत जो है वो परमानेंट होगी This is not going to be a temporary victory. Now that you have dealt with the altar of Baal, this time your victory is going to be permanent. ये अंडरलाइन कर लो कि केवल एक दो हफ्ते के लिए ये जीत नहीं होगी ये पूरे सीजन पूरे जीवन भर आयु भर और पीढ़ी दर पीढ़ी ये वेदी आपके लिए जीत का कारण बनेगा Is anybody receiving this कोई word लोग this इसे पा morning? रहे हैं Come on, let's pray right now. Come on, wherever you are, accelerate your spirit. जहां पर आप हैं आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो मैं पा रहा हूं वो केवल आज के हफ्ते के लिए नहीं मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है Build your offering to the Lord now. आज एक वेदी अभी इसी वक्त प्रार्थना में बनाओ रीमाना Build an altar to the Lord right now. कि अभी इसी वक्त उस वेदी को बनाओ रीमाना लेवे रे अंता का रूबोश Eramando bosh sebela kamanda nemelegede. शिकिरियां थमाना गला रादिनी भैया रोबरो शेखेरियां Shelamando nomoko sere. शेखेरे Make a commitment to the Lord that will last for generations. शेखारिया ऐसे कुछ वेदी बनाओ जो सालों भर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए रहेगा रीबा राबा Lamuni mana kabadere. Nobody has to see it. कोई देखने की जरूरत नहीं कि कौन वेदी बना रहा है It can be in your heart unto the Lord. वो वेदी शायद आपके हृदय में बन सकती है
But it is necessary that altar will be built right now. लेकिन ये जरूरी है कि वो वेदी जिस तरह गिदियोन ने बनाया वो आपके हृदय में अब बने। रिमाना लबा शेकेरे रोब्रो शाथा था था रबाना दीरी दीरी लेब्रो शिखिरियान थमना लरदिनी Haburi kaba sando lobo sene mendene ओरा ke. बाबा बाबा शिखारियान Kira थरा lara bahaduri shika ramanda nemenege. ओ रबा बाबा शांतरा Amone mana mandala basanduri bile kerede. Yes. Yes, everything that the enemy has built up, हर उस चीज जो शैतान ने बनाई है, everything that your families have been built up, ओ हर उस चीज जो आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ शैतान ने बनाई है, we take authority over those altars in आज Jesus' name. उसके ऊपर जीत को हासिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। रबा शातारा गाना दीरी बिया लाब्रो शाखा रांदनी यांथा मनागा। I declare Yahweh Shalom in this मैं यहोवे place. शालोम को घोषणा करता हूँ। रमाना I declare Yahweh Shalom over your children, God. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर यहोवे शालोम को मैं घोषणा करता हूँ। O Saba Haduri Bilamana Deregele. राब्रो शाखारियां Andolobo Samandana Mahaduri Bile Keremendeneke. लिब्रो शाखारियां थमना Hebala Sandanekele. मना माशाता रगना दियां थरा लगा। Does she understand English? Can I speak to her? Yeah, I'll translate. You know, the Lord is saying परमेश्वर ये कह रहा है आपसे, that you're precious in His eyes. आप परमेश्वर के नजर में कीमती हो। You know, the enemy will constantly distract you with different things. शैतान जो है कई सारे योजना लेकर आपको डिस्टर्ब करेगा कि भटका देगा। There are, you know, he will show you very chamkila things, you know, the glittering things. आपको लगेगा कि वो सोना है, चमकने वाली चीजें हैं। And he will try to take your attention away from God. परमेश्वर से आपकी अटेंशन को भटकाने के लिए बहुत सारे क्षमता कोशिश करेगा। In fact, you know, one of the things that the enemy tries to do is that he will put you to sleep every time you want to pray, put you to sleep every time you want to read the Bible. जब भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह से, तो हर बार जैसे करते हैं तो आपको नींद आती है, फिर सब सो जाते हैं। And the Lord is saying that today he is helping you get to the root of the issue. आज जो है परमेश्वर आपके जीवन के प्रॉब्लम्स का जड़ तक जाने के लिए सहायता करने वाला है। And the Lord is saying you are the light, you are the answer for your family. परमेश्वर कहता है कि आप आपके परिवार का प्रार्थना का जवाब है। That when God touches you, you are the Gideon in your house. आप आपके परिवार का गिदियन है। जब आपको परमेश्वर छुएगा, your entire house will see victory. आपके पूरे परिवार में जीत को आप दिखोगे, आप लेके आओगे उस जीत को। You will open doors for your house to see and experience breakthroughs that they have not seen for generations. उनके परिवार, आपके परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को या ब्रेक थ्रूस को, आजादी को जो नहीं पाए हैं, आप द्वार खोलेंगे और आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा। You will, let me talk even in the physical realm, you will handle money more than your parents have handled. समझ गए आपको? हालेलुया। You will be a reason to even bless them financially. आप उनको आर्थिक उन्नति का एक कारण बनेंगे। Amen. Normally families expect sons to bring the money, right? Yeah, हर बार But the Lord is saying you will be the reason for your family to कई be बार blessed. परिवार को लगता है कि लड़कों से ही पैसा आता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष करेगा। The Lord says He is with you. परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे साथ है। That you are a mighty hero. आप एक माइटी हीरो हो। हालेलुया। The Lord says that there are altars that you have made to Him. If you would continue to do it, you will reach that place of breaking point. आप जानबूझकर परमेश्वर के लिए कई सारे वेदी बनाए हैं प्रार्थना में, वो बनाते रहो, परमेश्वर आपको उसमें सहायता करेगा। Father, I just pray over your daughter right now. परमेश्वर आपकी बेटी के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में I cancel every fear. हर उस डर को हम डांटते हैं। I cancel every lie. हर उस झूठ जो इस सिस्टर के खिलाफ बोला गया है उसे हम कैंसिल करते हैं। I cancel every seed from the womb of the enemy. हर उस बीज जो शैतान ने इसके जीवन में बोया है उसके खिलाफ हम आते हैं।
We declare that she will be a reason for joy in her house. हम आज घोषणा करते हैं कि ये सिस्टर इनके परिवार के लिए एक आशीष और आनंद का कारण होगा। In the presence of her family, I anoint her. इसके परिवार के सामने मैं इसे अभिषेक करता हूँ। In the presence of her family, we elevate her. इसके परिवार के सामने हम इसको परमेश्वर तेरी उपस्थिति में ऊंचा उठाते हैं। Lord, we declare that starting today, your victory shall be her portion. आज हम घोषणा करते हैं कि आज से जीत इनका हक होगा। In Jesus' name, I speak, let her attract the favor of God. आज घोषणा करते हैं परमेश्वर के सामर्थ को आकर्षित करने की एक स्वभाव इनमें आए। And honor the altars that she is making, Lord. आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो वेदी इन्होंने बनाया है तू उससे ध्यान दे। Let those altars be permanent. वो वेदी जो इन्होंने बनाया है वो केवल इस एक साल के लिए नहीं परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। We bless her in Jesus' हम name. यीशु मसीह के नाम में इन्हें आशीष करते हैं। You know, Amen. see, what you don't understand is that Gideon's victory was not just Gideon's victory. Please, sir. आप ये जानना है कि गिदोन की जो जीत है केवल गिदोन के लिए नहीं था। Gideon's victory was the victory of the entire nation. गिदोन की जीत जो है उसके पूरे राज्य के लिए था। When Gideon experienced an encounter with God, the entire nation walked out of bondage. जब गिदोन ने उस जीत को हासिल किया तो पूरे झुंड पूरा राज्य जो है आजादी की ओर चला गया। And so when one person in a house makes a commitment to the Lord, जब एक व्यक्ति अपने परिवार में एक निर्णय को बनाता है the entire house receives the favor and the blessing and the grace of God. पूरा परिवार उस आशीष का पात्र बनता है। They don't have the revelation that you had, Gideon, शायद उनको पता नहीं कि आप क्या परमेश्वर से पाया है, but your breakthrough will become the breakthrough of the entire लेकिन nation. आपकी जो आजादी है वो पूरे राज्य की आजादी में बदल जाएगी। How many of you are happy about Green Pastures Revival Center this morning? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस कलीसिया को लेकर? I want you to believe and I want you to pray मैं ये आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप प्रार्थना करें that God will make you a Gideon for this house. कि परमेश्वर आपको इस भवन के लिए एक गिदोन के रूप में इस्तेमाल करे। That God will give you a burden to become a Gideon for this church. कि परमेश्वर के लिए इस भवन के लिए आप एक गिदोन बनेंगे। How many of you love this city? कितने लोग इस शहर से प्यार करते हैं? All of you are from Navi Mumbai. सब लोग नवी मुंबई से हैं? यस। Will you ask God to make you a Gideon for Navi Mumbai? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे शहर नवी मुंबई के लिए एक गिदोन बनाए? How many of you love our nation, India? कितने लोग अपने देश से प्यार करते हैं? Your altars can change the destiny of our nation. आपकी वेदी जो आप आज बनाओगे, आप बनाने वाले हो, वो आपके देश को बदल सकता है। Generations later, पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद when God has to change the seasons of a nation, परमेश्वर को जब एक राज्य का माहौल बदलना होगा, He can pinpoint to an altar that was made in Kargar. ओह, वो खारगर में बनाई उस वेदी को देखेगा And He will say, I will remember this altar and I will change the nation. वो कहेगा कि इस वेदी जो कारगर में बनाई है उस वेदी को देखकर मैं शहर को बदलूंगा, मैं राज्य को बदलूंगा। Will you be that altar builder in this nation? क्या आप वो वेदी बनाने वाले बनेंगे?